प्राथमिक ना पगले पगले माध्यमिक ना वंदे कन्या के रमणी की शोभे सुंदरता पीती कुशल संचालन छे जेनुने सुंदर छे सुखार ग्राम तीर्थ धाम अमार ग्राम तीर्थ महिला विज्ञान महाविद्यालय पंचमुखी विजनरी कॉलेजों में छे विध विधिकानु वैभव भगवती महाविद्यालय सगळा छे सोपान ग्राम तीर्थ धाम अमार ग्राम तीर्थ याद करिए आत्मानंद सरस्वती नाम श्री कांति श्री Our today's expert says in that poem, sometimes in our limited vision, we miss out the bigger picture. In our ability to understand only finite, we forgot the infinite. Let me have the pleasure to introduce our today's expert, who is known as Solar Man of India and also known as Solar Gandhi. Everyone, please welcome the founder of Energy Swaraj Foundation, Professor Chetan Singh Solanki from IIT Bombay. Professor Solanki was born in small village of Madhya Pradesh. He himself has studied in the light of kerosene lamp, but he committed to provide clean light and clean energy to all. He has done his PhD in leading R&D and innovation hub in micro and nano electronics from Catholic University, Belgium. He had led major solar projects at IIT Bombay, including National Center of Photovoltaic Research and Education. Professor Solanki has authored 7 books, 100 research papers in international journals, and has 4 US patents to his credit. His contribution to the solar industry has been immense. Professor Solanki has received Young Scientist Award in 2003 from France, Young Investigator Award in 2009 from IIT Bombay. He has also received Prime Minister's Award for Innovation in 2017. He has also delivered TED Talk in 2018 and also has 2 Guinness World Records in environmental sustainability. So now I would like to request Dr. Vajubhai Mawani sir, Vice President of STBS Trust, to felicitate today's personality, Professor Chetan C. Solanki sir. Thank you, sir. Now I would like to request Professor Nehal H. Patel, Assistant Professor in Electrical Engineering Department, to felicitate Dr. Vajubhai Mawani, sir, Vice President of STBS Trust. Now I would like to request Professor Kaushik Dola, Assistant Professor in Electrical Engineering Department, to felicitate Sri Hemant Bhai Topiwala sir, Honorable Secretary STBS Trust. Now I
would like to request Professor Krunal Chaudhary, Assistant Professor in Electrical Engineering Department, to felicitate Sri K.D. Wagani Sir, Treasurer of STBS Trust. Now I would like to request Professor Tushar Mangukia Sir, HOD of HNS Department, to felicitate our Principal Sir Dr. Jignesh G. Wagasya. Now I would like to request Professor Avinash Satasya Sir, HOD of Civil Engineering Department, to felicitate Head of Electrical Department Dr. Nikunjar Patel. Now I request to Dr. Jignesh G. Wagasya Sir to address the gathering. Good morning all. It is our privilege that we have Dr. Chetan C. Solanki sir as our eminent speaker as a part of his Swaraj Yatra. It is also the privilege of Surat city itself because he have made a journey of 11 years, starting last year and continue up to 2030 in his solar bus and going to aware about all the communities about solar application, solar utilization and minimize the wastage of all and solar other than solar related application. So on behalf of Sasit family, I would heartily, it is our pleasure that we have Vice President of our STBS Trust, Dr. Vajubhai Mahani sir, Secretary Dr. Sir, Treasurer. On behalf of Sasit family, I welcome you and please address the gathering about your valuable thoughts. Thank you. Now without wasting time, I request Professor Chetan C. Solanki Sir to start the session. So, good morning everyone. All the trustees, principal, faculty members and the students. It's my pleasure to be here among you this morning and talk to you regarding energy. Before I do that, I hope that everybody has done their breakfast and sitting here by choice. It doesn't look like as right now. Is that correct? I mean, you can go wherever you want to go. You don't have to attend it. But if you are attending it, there is one condition that I have to put always, that I only talk to the people who have smiling faces. जो अच्छे खुश चेहरे दिखते हैं उन्हीं से बात कर सकता हूँ. ऐसे मुरझाए हुए दुखी चेहरे जो बैठे हैं तो बात करना मुश्किल होता है. So you have to promise me that at least for the next 30-40 minutes you will be happy and smiling. Yes? Yes. Very good. How do I know that you are happy and smiling? कैसे पता चलेगा? कोरोना ने तो वो छुपा ही दिया चेहरा. You can't even feel. You know, but it is very important. And 30-40 मिनट के बाद यदि फिर से दुखी होने का मन करे तो फिर दुखी हो सकते हैं. You'll be free to do that.
doing my study, I was in Europe, बेल्जियम में PhD कर रहा था, तो एक साधु आए हमारे शहर में, ल्यूवेन में, and he said, I want to meet some Indian student studying here. So we happily went there. Then he asked us, 15 लोग बैठे थे, he asked us कि अच्छा ये तुम लोग इतने क्या कर रहे हो? तुम इसे MTech कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं. I said, क्यों कर रहे हो? Why are you studying? So we said, ज्ञान हासिल करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है. उन्होंने सुना थोड़ी देर तक, फिर बोलते हैं बकवास, कोई ज्ञान हासिल नहीं करना है. सच बताओ, इसलिए पढ़ाई कर रहे हो क्योंकि अच्छी नौकरी चाहिए. हाँ, बात तो सही है, अच्छी नौकरी चाहिए. इसे ओके ग्रेट, अच्छी नौकरी क्यों चाहिए? तो हमने फिर अपना थोड़ा फिलोसॉफिकली को देश की सेवा करना है, ऐसा करना है, तो नया टेक्नोलॉजी करेंगे, समाज में जाएंगे. इसे बकवास, ऐसा कुछ नहीं होना है. इसे अच्छी नौकरी इसलिए चाहिए क्योंकि अच्छे पैसे चाहिए. यहाँ बात तो ठीक है, अच्छे पैसे क्यों चाहिए इसे? First of all, look at the mind. How does it work? No, we study hard because we want good job. We want good job because we want good money. Why do we want good amount of money? क्यों पैसा चाहिए? Then he said, एक काम करते हैं, मैं सबको 1-1 करोड़ रुपए दे देता हूँ. सबके अकाउंट में 1-1 करोड़ रुपए जमा कर देते हैं. पर एक कंडीशन है कि वो पैसे का उपयोग नहीं कर सकते हैं. So this time हमने बोला बकवास. How can you do that? ऐसे तो मुझको उपयोग करने के लिए चाहिए ना, अकाउंट में रखने का क्या फायदा है? उपयोग करने के लिए चाहिए. Said हाँ, it's not that you want money. What you want is to make use of money. Say great. He said क्यों चाहिए? क्या करना? उपयोग क्या करना? हमने बोला गाड़ी, बंगला, ये वो सब चाहिए. He said ठीक है. सबको 1-1 बंगला दिया और सब बंगले के सामने 1-1 गाड़ी खड़ी है. परंतु एक शर्त है, क्या? उपयोग नहीं कर सकते. ऐसे सुपर नॉनसेंस. हाउ कैन यू डू दैट? अब तो उपयोग करने के लिए चाहिए ना ये सब सामान. तो नहीं यार, अच्छा उपयोग करने से क्या होता है? ये सब उपयोग करने से क्या होता है? अच्छा लगता है ना, मजा आता है. BMW में बैठे कोई उतरे, अच्छा BMW में बैठे वहां तक तो ठीक है, जब तक कोई और दूसरा ना देखे मजा ही नहीं आता. तो सिर्फ BMW में बैठने का मजा नहीं है, कोई हम BMW में बैठे उसको देखे उसका मजा है, फिर मजा आता है. ऐसा बोला. Then he said कि इतना ही यदि अल्टीमेट पर्पस ही तुम्हारा, देखो क्या किया हमने, पढ़ाई की, पढ़ाई से नौकरी, नौकरी से पैसे, पैसे से सामान खरीदा, सामान खरीदने से क्या होता है? अच्छा लगता है. He said अच्छा ही लगना अल्टीमेट पर्पस है, तो इतना टेढ़ा तरीके से क्यों करते हो काम? Getting my point? Ultimately what we want? अच्छा लगे, यही तो चाहते हैं सब लोग. पर अच्छा लगे तो कितना टेढ़ा रास्ता अपनाते हैं अच्छा लगने का. And that's what we all do. We all want good income. The country wants good GDP growth, है ना? हर कंट्री चाहता है देश में, विदेश में कि ग्रोथ अच्छी होना चाहिए, जीडीपी ग्रोथ अच्छी होना चाहिए. क्यों अच्छी होना चाहिए? क्योंकि पैसे कमाते हैं तो सुख समृद्धि आती है, खुशहाली आती है. That's very good. तो भारत का जीडीपी पिछले 5-6 पिछले 20 सालों से बढ़ रहा है ना. What is the growth rate? Our GDP growth rate 5%, 6%, 7%, even 9%. तो ये 5-6-7% की दर से जीडीपी बढ़ रही है, तो क्या हमारे चेहरों की स्माइल भी 5-6-7% की दर से बढ़ रही है? नहीं. तो गड़बड़ है. जो काम तो हम चाहते थे वो तो हो ही नहीं रहा है. खुशी होना तो चाहते, अच्छा लगे यही तो चाहते थे, अल्टीमेटली तो हो नहीं रहा है. यदि ऐसा हो रहा होता तो हमारी स्माइल भी 5-6-7% की हर दर से बढ़ जाती और हमारे चेहरे तो खुशी के फव्वारे बन जाते हैं और चेहरे से खुशी टपकती जहां भी जाए. इसके बजाय ये लोगों को बोलना पड़ता है कि अच्छा भैया प्लीज कीप स्माइलिंग ड्यूरिंग नेक्स्ट 30 मिनट्स. लुक एट. तो जब ये देखते हैं तो हमको लगता है कि यार दुनिया में बहुत बड़ा लोचा है ना, गड़बड़ है दुनिया में, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना चाह रहे हो क्या रहा है. अच्छा, ये सब जीडीपी को बढ़ाने के चक्कर में हमने अपने ही जीवन के आधार को नुकसान पहुंचा दिया. हमें जीने के लिए क्या क्या चाहिए? हवा, पानी, मिट्टी, जमीन, नदी,
जंगल ये सब चाहिए, isn't it? But because of all this growth that we want, every single natural element is in a bad shape. कुछ भी साबुत नहीं छोड़ा मनुष्य ने. Yes or no? That is how we are today. The so-called modern human beings of 21st century. This is how we wanted to be? No. हवा जिसके बिना 1 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते. मैं तुम सबके नाक 1 मिनट बंद कर दूं अभी, सांस लेना बंद कर दूं 1 मिनट, तो क्या होगा? क्या होगा? ट्राई करके देखना क्या होगा? नहीं. 1 मिनट के लिए भी सांस लेना बंद कर दें तो 90 से 95% लोग स्वर्ग ही सिधार जाएंगे बैठे बैठे. That is how in bad shape we are today. You can't even breathe. No, stop breathing for more than 1 minute. यदि इतना important है सांस लेना, तो ये हवा के लिए हम क्या करते हैं उसको बचाने के लिए? क्या क्या करते हैं? कुछ किया है जीवन में? नहीं. उसको बिगाड़ने के लिए कुछ किया है? दिन रात मेहनत करते हो. वर्क वेरी हार्ड. कैसे खराब हो जाए, कैसे खराब हो जाए. कितने बिगड़ गए हम लोग. The modern humans have really spoiled to a level कि वो खतरनाक ही हो गए. पानी जिसके बिना 3-4 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते. पानी पीना बंद किया, 3-4 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगे. पानी को ठीक करने कुछ किया नहीं. बिगाड़ने के लिए इतना बिगाड़ा है कि जिसकी हम पूजा करते हैं, नर्मदा मैया, गंगा मैया, आप में से कोई जाके 1 गिलास पानी पी सकते हैं? नहीं. हाउ बैड इट इज. कितने बिगड़ गए. जंगल जो कि धरती के फेफड़े माने जाते हैं, lungs of the planet. What we have done? We have cut down the lungs by 40%. 40% जंगल काट के कम कर दिया. That is what we are today. फूल देते हैं तो उसको इतना प्लास्टिक में लपेट के देते हैं कि उसकी खुशबू भी नहीं ले सकते. पानी की बोतल है, 6 सेकंड लगते हैं इसको पीने के लिए, 5 सेकंड. और एक बार 5 सेकंड 6 सेकंड में पी लिया तो 300-400 साल ये पानी की बोतल पड़ी रहेगी. मतलब ये मॉडर्निटी है जो हम करते हैं कि मूर्खता है? क्या लगता है तुम्हें? मॉडर्निटी की मूर्खता है? अच्छा, कुछ तो बोलना पड़ेगा. या तो बोलो मॉडर्निटी या तो बोलो मूर्खता है. मॉडर्न मूर्खता है. This is what we want in our life. And particularly I summarize the whole world or the human beings, modern human beings, in 3 points. Number 1, today's modern humans are the most dangerous animals on the planet. सबसे खतरनाक प्राणी यदि धरती, इतने डेंजरस कि इतने बड़े ग्रह का जलवायु बदल जाता. Isn't it? आज यदि एक जंगल में 100 हिरण खड़े हो और एक भूखा शेर खड़ा हो तो शेर क्या करेगा? एक हिरण को मारेगा, खाएगा, पेट भरेगा और शांत हो जाएगा. और उसकी जगह आदमी खड़ा हो तो एक को मार के खाएगा, 2-4 को फ्रिज में रखेगा, है ना. 10-15 की एफडी करा लेगा. पता नहीं नाती पोती के लिए करते करते किसी को भी छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा. That is how we are today, isn't it? So we are very dangerous animals. Second, the modern humans of today are the most stupid animals on the planet. बताएं अपनी मूर्खता है. इससे मूर्ख क्या बात हो सकती है? एक व्यक्ति जिस ब्रांच पे बैठा हो उसी को काटता है तो बोलते मूर्ख आदमी है. जो पानी, हवा, मिट्टी, जमीन, जंगल जो हमारे जीवन का आधार है, जिसके बिना जिंदा नहीं रह सकते, उसी को खराब करना. इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? तो बड़े ही मूर्ख प्राणी हैं. Third, humans of today are the most ignorant animals on the planet. अज्ञान. मैं लोगों से पूछता हूँ, आप में से कितने लोग सोलर एनर्जी का उपयोग करते हैं? कितने लोग करते हैं? कोई नहीं करता. 1-2. अच्छा, आप में से कितने लोग रोज खाना खाते हैं? अरे वाह, वेरी गुड. तो खाना खाना सोलर एनर्जी का उपयोग करना है कि नहीं है? पानी पीना सोलर एनर्जी का उपयोग करना है कि नहीं है? श्वास लेना सोलर एनर्जी का उपयोग करना है कि नहीं है?
पर हमारी अज्ञानता देखो, हमें क्या लगता है सोलर पैनल का उपयोग किया तो ही सोलर एनर्जी का उपयोग किया। हाउ इग्नोरेंट वी आर। So this is what we are today, most dangerous animal, most stupid animal and most ignorant animal on the planet। तो धरती माँ जब देखती होगी ऊपर से, सोचती होगी भगवान को याद करती होगी, ऐसे खतरनाक मूर्ख और अज्ञान प्राणी से भगवान को ही बचा। नहीं, you change the entire climate so much so that the number of species that are extinct, getting extinct every year in the world is thousands and thousands. Thousands and thousands of species are getting disappeared from this planet. It's changing so fast. Alright, so we have changed, we are changing, climate has changed. तो बिगड़ गए काफी। तो बिगड़ने के पीछे कारण क्या है, क्यों बिगड़े? Because from 1850s onwards, जब से औद्योगिकरण चालू है दुनिया में, तब से बिगड़ना चालू है। औद्योगिकरण कब से चालू है? जब हमने कार्बन बेस्ड सोर्सेस का उपयोग करना चालू किया, कोल, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, right? 1850 we started using coal, then 60s and 70s we started using oil, and then 80s and 90s we started using gas. सारे कार्बन सोर्स 1850 के पहले हमारा जीवन 100% सोलर पे चलता था, बट हम धीरे धीरे शिफ्ट होते गए, आज दुनिया में 81% एनर्जी दैट इज कमिंग फ्रॉम ऑल दिस सोर्सेस, 81%. So life is completely shifted from solar energy to fossil energy. Fossil energy, right? And we use fossil energy as if हमारे पिताजी कमा के रख के गए हो, कोल हमारे पिताजी ने रखा हो, कहीं से निकाल लो बस, क्रूड ऑयल निकाल लो। यदि बिजनेस है ना, गुजरात में बिजनेस ज्यादा अच्छे से समझते हो, बिजनेस में मतलब 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया कैपिटल और उससे कुछ इनकम हुई, तो इनकम को यूज कर सकते हैं हम, उसको कमान जो भी हमारे काम यूज कर सकते हैं। परंतु कैपिटल को यूज करना चालू कर दिया तो बिजनेस का क्या होगा? ठप हो जाएगा, राइट? बैठ जाएगा। सो जो पेट्रोल, डीजल, कोयला, एलपीजी, सीएनजी, ये तुम्हारा कैपिटल है कि इनकम है? कैपिटल है, बट हम उसको यूज कैसे करते हैं? इनकम जैसे। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, संभव नहीं, कभी ना कभी तो गिरोगे, पछताओगे। This equation is not possible, you can't do this. And that is what is happening. Not only that it is resulting in a climate change, it is also distributed, it also causes a lot of money, and it is not infinite. So someday you are going to run out of the oil. In fact, Saudi Arabia के एक प्रिंस थे, उन्होंने 2000 में एक स्टेटमेंट दिया था, है ना? हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पहले क्या था? पाषाण युग आता है, स्टोन एज। He said Stone Age did not get over because of the lack of stone. Stone Age इसलिए नहीं खत्म हो गया कि दुनिया में से पत्थर खत्म हो गए थे। Similar to that, oil age, which is the current age, will end much before the oil age. इसलिए नहीं कि हमको ऑयल, पेट्रोल, डीजल उपयोग सब बंद इसलिए नहीं कर देना चाहिए क्योंकि ये सब खत्म हो रहा है, बल्कि इसलिए कि क्लाइमेट इतना चेंज हो गया है। तो जब भी हम ये सोर्स का उपयोग करते हैं, क्या होता है? सिंपल रिएक्शन है। कार्बन को जब हम जलाते हैं, चाहे वो एलपीजी के फॉर्म में अपने किचन में चलाएं या फिर गाड़ी में चलाएं या फिर पावर प्लांट में चलाएं, व्हाट इज द रिएक्शन? कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो एनर्जी तो उपयोग कर लेते हैं, बट दो चीजों का नुकसान होता है। इट टेक्स ऑक्सीजन आउट ऑफ द प्लैनेट, तो ऑक्सीजन को नुकसान होता है। सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस, इट रिजल्ट्स इन अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। And what is the greenhouse effect? Not depletion. The effect of the greenhouse effect is warming up. जब कार में बैठे हो, कांच बंद हो और एसी भी बंद हो, उस समय जो होता है उसको वार्मिंग बोलते हैं, राइट? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो गर्मी बढ़ रही है प्लैनेट, दैट इज इंक्रीजिंग द होल प्लैनेट। पूरे पृथ्वी का टेम्परेचर ऑन एन एवरेज इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले की तुलना में 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया। 1 degree centigrade it is warmer. Is that a big deal? 1 degree centigrade, is that a big deal? Somebody may say कि अच्छा
समर में टेम्परेचर 45-46 डिग्री जाता है, विंटर में 4-5 डिग्री जाता है, तो 1 डिग्री से क्या फर्क पड़ता है, राइट? क्या फर्क पड़ता है 1 डिग्री से? बट दिस 1 डिग्री एवरेज इंक्रीज ऑन द प्लैनेट टेम्परेचर इज अ बिग बिग चेंज। इतने बड़े ग्रह का एवरेज टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, इट्स अ वेरी बिग चेंज। In fact, it is so big that it is causing all kind of problems in the world. पूरे दुनिया में उथल मची हुई है सिर्फ 1 डिग्री सेंटीग्रेड के कारण। One of the best effect of that is change of weather pattern. पूरा weather pattern change हो गया। ठंड के समय ठीक से ठंड नहीं है, बारिश के समय ठीक से बारिश नहीं। अनुभव किया सबने? So weather pattern is changed just because of this 1 degree centigrade. Because of this 1 degree centigrade, there are forest fires of an enormous magnitude. ऑस्ट्रेलिया में आग, अमेज़न के फॉरेस्ट में आग, अभी कैलिफोर्निया में आग लगी थी। These are rich countries, Australia, America, very rich country, economically very advanced, scientifically very advanced. इतने रिच होने के बाद भी, इतने एडवांस होने के बाद भी फॉरेस्ट फायर को बुझा नहीं पाए। You know that, right? पढ़ा होगा? आग को कंट्रोल नहीं कर पाए। इमेजिन कितनी भयानक आग होगी। टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स जंगल जल गए और बिलियंस ऑफ एनिमल्स बर्न्ड अलाइव, जिंदा जल गए। Why? Because of 1 degree centigrade. Because of this 1 degree centigrade, last year जो डेजर्ट एरिया है मिडिल ईस्ट, वहां पर स्नोफॉल हुआ, डेजर्ट में स्नोफॉल हुआ। इमेजिन। और जहां पर स्नोफॉल होता है यूरोप में, वहां पर हीट वेव्स आती हैं, गर्मी की लहरें। द टेम्परेचर इन वन ऑफ द सिटी इन फ्रांस वेंट टू 45.8 डिग्री सेंटीग्रेड, 45.8 डिग्री सेंटीग्रेड। इंडिया में हमको पता है ना 45.8 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है। दिस टेम्परेचर हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन यूरोप, कोल्ड कंट्रीज, राइट? तो देखो कितनी गड़बड़ है। जस्ट 1 डिग्री सेंटीग्रेड, बिकॉज ऑफ दिस 1 डिग्री सेंटीग्रेड सी लेवल इज राइजिंग। इतना अथाह समुद्र है, उसका भी लेवल बढ़ रहा है। There are migration taking place. बांग्लादेश में आप गूगल सर्च करके देखना, माइग्रेशन हो रहा है जनता का कोस्टल एरिया से बाहर, बिकॉज़ सी लेवल इज कमिंग इन। उनके घरों में घुस रहा है, खेतों में घुस रहा है। It is happening many parts of the world. Imagine the amount of ice that is melting. इतने बड़े अथाह समुद्र का ही लेवल बढ़ा दे तो सोचो कितने बड़े लेवल का आइस मेल्ट हो रहा होगा। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आइस कैप्स आर मेल्टिंग वेरी फास्ट, so much so that it is estimated that 8 to 10 years from now, जब नॉर्थ पोल पे गर्मी आएगी तो वहां पर जो आइस बचेगी वो जीरो रहेगी। there will not be any ice left on the north pole. कितना खतरनाक बात है। Getting it? This is all done by whom? ये सब किसने किया है? हाँ, जो लोग समझदार होते हैं ये सब इंसानों ने किया है। किसने किया है? मैंने नहीं किया है, ना, इंसानों ने किया है। वेरी नाइस। इंसान कौन है? वहां भी ठीक फिर भी एक लेवल पे अटक जाते हैं। हम हैं? नहीं, हम नहीं। किसने किया ये? मैंने किया है। Realize that it is all done by you. दुनिया में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हुआ है since the history of the human civilization, modern human 200,000 years, उसका 50% CO2 emission has happened in last 30 years alone. अभी तक का जितना भी CO2 emission है उसका 50% has happened in last 30 years alone. और स्टूडेंट को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब लोगों ने वो 30 साल का जीवन जिया है धरती पे। इसका मतलब you are responsible for that. You have done that. I have done that. Alright, हो गया। अभी क्या करें? Climate scientist says that we need to stop the global warming to how much? सुना होगा ना? कितने डिग्री पे रोकना चाहिए? 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका है, कितने पे रोकना चाहिए? नहीं सुना कभी? 1.5 डिग्री। 1.5 is a very very important number. अब सर्च करना इसमें बिलियंस ऑफ आर्टिकल्स मिल जाएंगे इसके ऊपर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। So we need to stop global warming at 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड।
कितना हो गया है 1 डिग्री. How much margin is left? 0.5 डिग्री. Ideally 1.5 पे रखना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 डिग्री सेंटीग्रेड. Why? Because once you cross this line, the changes in the atmosphere will be irreversible. Climate will not be reversed back once you cross this line. लक्ष्मण रेखा जैसा है, एक बार ये लाइन क्रॉस कर गए तो कर गए, इसको वापस ठीक नहीं कर सकते, चाहे पूरी दुनिया के लोग साधु संत ही क्यों ना बन जाए. So it's very, very dangerous to cross this line. So the next question is, how much time is left? कितना समय है हमारे पास before we cross this line? 10 to 15 years. 100 साल 500 is about 350 billion tons that we can emit. उतना किया तो 1.5 डिग्री पे टच होगा. And per year emission rates are about 52 billion tons. So 350 divided by 52. 7 years. And there are climate clocks that are running. You can actually look at the clock. You can search yourself. ऐसे कई शहरों में ऐसे घड़ी लगा है पब्लिक में. That's climate clock. And the emission period पर एक और fast होगा. That is the only time left before we touch 1.5 degree centigrade. Once we touch 1.5 degree centigrade, ऐसा नहीं है कि अचानक प्रलय आ जाएगा. क्या होगा? ये जो भी घटनाएं हो रही है, इरेटिक घटनाएं, इसकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों बढ़ जाएगी. तो बाढ़ आएगी तो और तेजी से आएगी, गर्मी पड़ेगी तो और तेजी से बढ़ेगी, इंटेंसिटी. एंड बार-बार ऐसा होगा, फ्रीक्वेंसी विल आल्सो चेंज. And slowly the temperature will keep rising and rising and rising. And by the end of this century, it is estimated that the global temperature will be something like 3 to 6 degrees centigrade warmer than the pre-industrial. 3 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड प्री इंडस्ट्रियल एरा से ज्यादा होगा. तो जब ग्लोबल टेम्परेचर 3 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा होगा तो ह्यूमन लाइफ सरवाइव करेगी कि नहीं करेगी पता नहीं. There is a very big question mark whether human life will survive or not, or in what shape. कितने साल की बात कर रहा हूँ? By the end of this century, 80 years only, which is only 3-4 generations away. इससे बहुत दूर की बात नहीं कर रहे. एक दलाई लामा इतने बड़े धर्म गुरु, उनका एक स्टेटमेंट भी आया 2 महीने पहले. ही said the existence of humanity on this planet is at stake. This is not use of fossil fuel, coal, petrol, diesel, LPG, CNG, ये सब को छोड़ दो. Isn't it? Then there will be solution. कब छोड़ दो? कब छोड़ना चाहिए? आज से, अभी से. We don't have a lot of time, is it left? So as per the IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, it is a panel with 181 countries of the world signed together. In fact, America was out, and the new president Joe Biden has signed to come back again with Paris Agreement. As per the Paris Agreement, IPCC report, we need to take a drastic and immediate action. Your action should be drastic. छोटे मोटे से काम नहीं चलेगा, and it has to be immediate. So when I started my yatra, Energy Swaraj Yatra, so what is the drastic action that I am suggesting everyone? Surrender your electricity connection. अपना बिजली कनेक्शन ही छोड़ दो. That is a drastic change. छोटे मोटे से काम नहीं चलने वाला वैसे भी. So surrender electricity connection at home, at the institute, wherever you do. तो कब surrender करना चाहिए? Immediate, right now. So until we take a drastic and immediate action, the world is not going to be repairable anymore. उसको ठीक भी नहीं कर पाओगे. But even before we do that, before we shift our life once again 100% on solar energy, we have to be careful. Otherwise, as a human being, we keep using science and technology, and we keep doing some nonsense in this planet, and we keep regretting. हमेशा देखो साइंस और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कुछ करते हैं बाद में पछताते हैं, कुछ करते हैं बाद में पछताते हैं. Why? Because the entire universe is so infinite in size and in terms of time. Human mind is very limited. Our knowledge is very limited. हम इसको समझ भी नहीं सकते, प्रकृति को समझ भी नहीं सकते. तो जो भी हमारा लिमिटेड नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, उसमें जो भी एक्शन लेते हैं वो पछताते हैं.
पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, सब इतना प्रोड्यूस किए, खाद वो खाद डाल के क्या क्या नहीं किया। नाउ व्हाट, अभी क्या लगता है, व्हाट वी से ठीक नहीं है, क्या करना चाहिए, ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्शन करना, राइट। कितने सारे लोग लगे ऑर्गेनिक, तो पहले तो ऑर्गेनिक ही होता था, बट वी वेंट थ्रू द साइकिल, वी फेल्ट कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहिए, नाउ मेनी पीपल थिंक कि नहीं करना नहीं चाहिए, खतरा है। So we keep doing things and regretting. तो even फिर से 100% जीवन को सोलर पे लाना है, so keep do it carefully. अंधाधुंध ब्लाइंडली करने से काम नहीं चलेगा। अदरवाइज सब कुछ सोलर पे कर दिया, घर में 4-4 एसी लगा लिए, सब कुछ सोलर पे कर दिया और बोले मैंने तो महान काम किया, that's not correct। हिंदी में कहावत है ना, 900 चूहे खाकर बिल्ली और चुलचुली, पहले इतना सब फैला दिया, फिर बोलते मैंने तो सोलर पे किया। No, that is not going to work. So that we have to understand what Gandhi ji said about how should we live. तो गांधी जी ने कहा था, that is, I believe, is the laws of sustainability, fundamental laws of sustainability. उन्होंने जो कहा था उसको हमें पालन करना ही पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो ह्यूमन लाइफ धरती पे लंबे समय तक नहीं रहेगी, इसकी भी गारंटी। What he said? He said there is only enough in the world for everyone's need, not for the greedy. दुनिया में सबकी जरूरत के लिए पर्याप्त है, लालच के लिए नहीं है। सुना है सबने? सब लोग अभी भी जाग ही रहे हो? हाँ, थैंक यू सो मच। सब लोग अभी भी खुश हो? ओके, वेरी गुड, इवन बेटर। सो सबकी जरूरत के लिए पर्याप्त है, लालच के लिए नहीं। सुना है सबने? पर क्या हम हमारी जरूरतें पूरी करते हैं? नो। What is happening in this world is everything is growing. GDP बढ़ाना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, कंजम्पशन बढ़ाना है, ये बढ़ाना है, घर बड़ा करना है, सब बड़ा करना है। पर ऐसा संभव नहीं है ना, क्योंकि धरती का साइज नहीं बढ़ रहा है। धरती को खींच खाच के बड़ा नहीं कर सकते, पानी बड़ा नहीं हो रहा है, मिट्टी बढ़ नहीं रही, जंगल बढ़ नहीं रहे, नदी बढ़ नहीं रही, तो हमारा प्रोडक्शन और कंजम्पशन कैसे बढ़ सकता है? इसी धरती पे तो करना है ना। इसका मतलब एक गड़बड़ है। This equation is not valid and will fail sooner or later. So what does it mean? There is only enough in the world for everyone's need, not for the greedy. It means that because everything is finite in this world, your consumption should also be finite. चूंकि सब भी finite है, तो consumption भी finite होना चाहिए। तो जो भी हम कंज्यूम करते हैं उस पर लिमिट होना ही चाहिए, यदि नहीं है तो गड़बड़ है। आ रही बात समझ में? किसका कंजम्पशन फाइनाइट होना चाहिए? पड़ोसी का? खुद का बोलो ना, सबके लिए, तुम्हारे इंडिविजुअल लोगों के लिए बात कर। किसका कंजम्पशन फाइनाइट होना चाहिए? मेरा। Your consumption has to be finite. Second thing, Gandhi said, not the mass production, but production by masses is required. No? Not the mass production, production by masses is required. क्यों? क्योंकि जब भी मास प्रोडक्शन करते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होता है, उसके फायदे अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इसलिए दुनिया में असमानता बढ़ जाती है। और जब भी असमानता बढ़ेगी तो अशांति बढ़ेगी, भेदभाव बढ़ेगा, डिविजन बढ़ेंगे, वायलेंस बढ़ेगा, और वही तो हो रहा है। दुनिया इज इट बिकमिंग मोर पीसफुल वर्ल्ड। साइंटिफिकली इतने एडवांस होते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस होते जा रहे हैं, सारा संसाधन खड़े होते जा रहे हैं, तो क्या ये दुनिया काफी शांतिफुल हो गई है, पीसफुल हो गई है? ऐसा नहीं हो रहा है। तो बहुत बड़ा गड़बड़ है दुनिया में। ही सेड नो, उन्होंने 100 साल पहले बोला था कि नहीं, ये ठीक नहीं है, मास प्रोडक्शन करना ठीक नहीं है, प्रोडक्शन बाय मासेस होना चाहिए। इनफैक्ट उनके एक फॉलोअर थे जो ये शूमाकर, ही वाज अ जर्मन इकोनॉमिस्ट, उन्होंने किताब लिखी थी स्मॉल इज ब्यूटीफुल। इन दैट बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल देयर वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट। ही सेड एनी इंटेलिजेंट फूल, मतलब कोई भी बुद्धिमान गधा, any intelligent fool can make things bigger, more complex and more violent. कोई भी बुद्धिमान गधा क्या कर सकता है? चीजों को बड़ा बना सकता है, कॉम्प्लेक्स बना सकता है, वायलेंट बना सकता है। तो देखो हमारे आसपास हम क्या कर रहे हैं? क्या हम बड़ी बड़ी कार बना रहे हैं? ये सब बड़े घर बना रहे हैं, बड़े रोड बना रहे हैं, बड़े बिल्डिंगें बना रहे हैं, तो क्या बुद्धिमान गधों जैसे व्यवहार कर रहे हैं? हाँ,
किसके बारे में बात कर रहा हूँ? खुद के बारे में, सबके बारे में। Intelligent fools, that is how we are behaving. Then only we are doing this ना। कोई भी नदी के पास चले जाओ तो बदबू ही आती है। कितनी कितनी बड़ी बात है, imagine. So he said no, that's not right. Production by masses होना चाहिए. So whenever we apply these two rules, consumption पे limit होना चाहिए और production कैसा होना चाहिए? Distributed होना चाहिए. Whenever we apply these two rules, we can call it energy swaraj. Energy is such an important thing in our life. We all need energy. But how should we consume energy? First of all, put a limit on energy consumption. Second out, generate it locally, distributed manner. Then we will not affect the environment. Generate it locally. So therefore, when I started my यात्रा जो एनर्जी स्वराज फाउंडेशन, इसका जो मेन मूवमेंट है, लोगों के घरों से बिजली कनेक्शन कटवाना, ताकि लिमिट रहे कंजम्पशन पे और लोकली जनरेट हो, लोकल लोग बनाए, लोकल लोग स्किल डेवलपमेंट हो, लोकल लोग करें, लोकल इकोनॉमी ठीक हो, बाहर पे निर्भरता कम हो जाए, देश की निर्भरता कम हो जाए, देश का पैसा बचे और क्लाइमेट चेंज होने से बचे। इतने सारे फायदे हैं। But before we do that, there is also what I call it, we need to follow what is called ALG principle. A means avoid use of energy even if it is solar energy. Solar energy है तो भी उसका उपयोग अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि सोलर पैनल को प्रोडक्शन करना भी आसान काम नहीं है। बहुत एनर्जी लगती है, सिलिकॉन बनाना, फिर उसको सेल बनाना, वेफर बनाना, मॉड्यूल बनाना, ग्लास बनाना, फ्रेम बनाना, स्ट्रक्चर बनाना, वायर बनाना, कितना सारा काम लगता है। तो उसका कार्बन फुट कम है, कार्बन फुटप्रिंट कम है, पर जीरो नहीं है। So therefore, what is the best thing to do? Avoid use of energy even if it is solar energy. Avoid it. क्या क्या अवॉइड कर सकते हैं? आई एम हैप्पी टू सी कि दिन में यहाँ लाइट नहीं चल रही, वेरी नाइस। हमें लाइट की जरूरत भी नहीं होती, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में बिना लाइट के चल सकते हैं, बट हर जगह देते हैं आधा हम लोग खिड़कियां बनाते हैं, खिड़कियों पे पर्दे लगाते हैं, फिर अंदर लाइट चालू करते हैं। दिस इज हाउ वी डू, दिस कैन बी अवॉइडेड। मैंने अपने घर में देखा क्या क्या अवॉइड कर सकते हैं, तो मेरी नजर फ्रिज पे गई, फ्रिज अवॉइड कर सकते हैं। फ्रिज का उपयोग क्यों करते हैं लोग? सबसे ज्यादा खराब होने वाला आइटम क्या होता है फ्रिज में? दूध। मिल्क को मेरे गांव में 5 से 6 घरों में ही फ्रिज है, छोटा सा गांव मध्य प्रदेश में, परंतु सबके यहाँ गाय है, भैंस है। तुमसे ज्यादा तुम पैकेट का दूध खरीदते हो, वो तो बाल्टी से निकाल के लाते हैं। तो क्या लोगों के यहाँ दूध खराब होता है? नहीं, इट्स वेरी इजी, बॉईल कर लो 2 बार, दैट्स इट। सो टेकिंग केयर ऑफ द मिल्क इज इजी। सदियों से तो होता ही आ रहा है ना, तो फिर फ्रिज की क्या जरूरत है? मुझे ऐसा लगता है आजकल की जिन लोगों ने पुराने जन्म में बहुत बुरे कर्म किए होंगे, वही लोग बेचारे अपना सामान फ्रिज में रखते हैं, ठंडा रखते हैं, फिर उसको गर्म करके खाते हैं। ये पुराने कर्मों का ही फल है। नहीं तो फ्रेश नहीं खाएगा आदमी, क्यों खाएगा बासी सामान? तो मेरे यहाँ 200-250 साल से फ्रिज उपयोग नहीं कर रहे लोग पूछते हैं, सर बिना फ्रिज के कैसे रहते हो? तो मैं बोलता भाई साहब 20-30 साल पहले आप भी तो ऐसे ही रहते थे, अभी तो बिगड़े हो। फ्रिज चाहिए, एसी चाहिए, ये सब बिगड़ गए। तो फ्रिज बंद कर देना चाहिए। आगे बात समझ में? हाँ, तो आज जाके शाम को OLX पे फ्रिज को बेच देना। एसी बंद कर देना चाहिए। एसी को उपयोग करना ही पाप है और पाप से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 घंटा यदि हमने एसी चलाया तो लगभग 1 यूनिट बिजली का उपयोग करते हैं, और 1 यूनिट बिजली को प्रोड्यूस करके आपको पहुंचाने में 1 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है। और 1 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में एनवायरनमेंट में जाती है तो 50 से 200 साल तक अपना असर दिखाती है। ग्लोबल वार्मिंग करेगी कितने दिन तक? 50 से 200 साल तक। तो मतलब 1 घंटे का जो तुम्हारा सुख है एसी में बैठने का, उसका भुगतान कितने दिन तक करना पड़ेगा? 50 से 200 साल, 4-5 जनरेशन। तो जो एसी का उपयोग करते हो तो मर जाएंगे। 40, 50, 60 साल की उम्र वाले लोग 20, 30, 40 साल में मर जाएंगे, परंतु उसका जो भुगतान करेंगे वो एसी का उपयोग करने का जो भोगेंगे, वो कौन भुगतान करेंगे? उनके
उनके बच्चे, उनके आने वाले बच्चे, उनके आने वाले बच्चे भुगतान करेंगे। तो क्या ये क्राइम नहीं है? क्या अपराध नहीं है? Just because you want to be comfortable, you destroy the environment so much. तो एसी का उपयोग करना तो पाप ही है, क्योंकि इतना ज्यादा एनर्जी का उपयोग करते हैं। गीजर बंद कर सकते हैं। अच्छा, गर्म पानी से नहाना तो गैस पे रख के गर्म करके नहाओ जैसे करते थे, पुश बटन छोड़ दो। So a lot of things can be avoided. So if you see carefully, कम से कम एक तिहाई एनर्जी का उपयोग हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। तो रूल नंबर 1, अवॉइड यूज ऑफ एनर्जी इवन इफ इट इज सोलर एनर्जी, अवॉइड इट बाय 1/3. नेक्स्ट इज मिनिमाइज इट. Minimize use of energy by using efficient appliances. You know, for example, LED lights are very efficient, so you can replace, जो पुरानी ट्यूबलाइट को रिप्लेस करके LED लगाएंगे तो 200-300% इलेक्ट्रिसिटी बचेगी। ये जो पंखे हैं ये इंडक्शन बेस्ड पंखे हैं, इसकी जगह BLDC पंखे आ गए हैं आजकल जो 25 वाट में चल जाते हैं, 30 वाट में चल जाते हैं, तो 150% इलेक्ट्रिसिटी वहां बच जाएगी। और क्या करना चाहिए? LED टीवी यूज करना तो LED टीवी यूज करना चाहिए। बहुत कम एनर्जी वाली टीवी आती है, बहुत कम एनर्जी यूज वाले कंप्यूटर्स आते हैं। फ्रिज का उपयोग नहीं करना चाहिए, पर करना ही है तो 3-4 दरवाजे वाला उपयोग ना करें, एक छोटा फ्रिज का उपयोग करें। ऐसे का उपयोग नहीं करना चाहिए, करना ही तो 5 स्टार रेटेड अप्लायंस का उपयोग करें। So you will see that 1/3 you can avoid, 1/3 you can minimize. तो फिर बचा कितना? Only 1/3. तो जब 1/3 ही बचा है तो आज ही बिजली कनेक्शन कटवा सकते हैं। न सरकार की जरूरत है, न सब्सिडी की जरूरत है, न नेट मीटर की जरूरत है, न कनेक्शन की जरूरत है। अपना आत्मनिर्भर बन जाए। नहीं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत की जरूरत है। आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा? हम आत्मनिर्भर बनेंगे तभी तो भारत आत्मनिर्भर बनेगा। घर घर मिलके, इंस्टीट्यूशन मिलके, शहर शहर मिलके तो आत्मनिर्भर भारत बना है ना। So that is what we need to do. And that's why our mission is asking people to surrender electricity connection. तब जाके ये लिमिट में काम होगा और लोकल होगा। सब लोग अपने अपने आत्मनिर्भर हो जाएं तो बढ़िया हो जाएगा। So यदि जो लोग पेरेंट्स हैं और जो पेरेंट्स बनने वाले हैं, यदि अपने बच्चों के लिए कुछ करना है तो ये बहुत एक्यूमुलेट करके जाने की जरूरत नहीं, वेल्थ क्रिएशन की जरूरत नहीं है ना। टुडेज जनरेशन इज स्मार्ट जनरेशन, वी नो दैट, राइट? हमसे ज्यादा स्मार्ट है, वो अपना खा कमा लेंगे, सब कर लेंगे। तो यदि अपने बच्चों से सच में प्रेम करते हो और अपने बच्चों को आशीर्वाद देना चाहते हो, सच में आशीर्वाद देना चाहते हो, तो क्या करना चाहिए? उनके लिए सिर्फ शुद्ध पानी छोड़ के जाना, शुद्ध हवा छोड़ के जाना, शुद्ध मिट्टी छोड़ के जाना। नहीं तो उनका चोरी कर करके हमें पानी निकाल के कितने फीट पे पहुंचा के पता नहीं यार, सूरत में कितना पानी का लेवल। So that is what we have become. So that is what is required. Then only the energy Swaraj come. हम आत्मनिर्भर बने, अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए शुद्ध वातावरण छोड़ के जाएं, लिवेबल वातावरण छोड़ के जाएं, जिसमें वो डर के न जिए कि हे भगवान कल कौन सा वायरस आएगा, कल कौन सा तूफान आएगा, कल कौन सी बीमारी फैलेगी, कल कौन सा सूखा पड़ेगा, कल कौन सा बाढ़ आ जाएगी, ये डर में न जिए। उसका एक ही तरीका है that we have to ensure that our climate stays as it is. Then only it is possible. So with this note, once again I would like to thank all of you for attending. And now the time is over. यदि सबका दुखी होने का मन करे तो आप दुखी हो सकते। Thank you very much. Thank you, sir. I can take some questions. Yes. If anyone having question. No questions? क्या हो गया? सब ठीक ठाक है? Yes, sir. Good. तुम्हें इतना अच्छा प्रोफेसर हो कि एक ही बार में सब समझा दिया? Okay, that is also good. Thank you. Sir, right now we are talking about solar energy usage, right, in our generation. Do you suggest any other option other than solar? सोलर ही इतना है ना, उससे काम हो जाएगा। तो कम है इसलिए जाते हैं, ज्यादा है इसलिए ये सब कुछ है। No, actually, there are other options like many other scientists were even suggesting like there can be other options like
nuclear energy production and all those things. दो नियम बताए मैंने, वो पालन करना पड़ेगा. क्या? Put a limit on your consumption and make it local. तो अपने घर में न्यूक्लियर पावर प्लांट इंस्टॉल कर सकते हो तो very good. वो mass production usually मास प्रोडक्शन तो प्रॉब्लम ही है ना, वही तो समझा है. प्रोडक्शन में मास प्रोडक्शन जब भी करोगे पछताओगे, गारंटीड हो. यही तो हमने देखा पिछले 100 साल का इतिहास देख लो. द प्रॉब्लम ओनली. सो प्रोडक्शन में मासेस ही होना चाहिए, वरना इवन न्यूक्लियर में यू हैव सीन व्हाट हैज हैपेंड इन जापान. मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर नाउ स्टॉपिंग द यूज ऑफ न्यूक्लियर. Sir, I have a question. Sir, as a civil engineer, I would like to ask you that can green building and net zero building will be the solution for the energy control? See, it is first of all let us realize that it is not only about energy. It is also about water. It is also about food. It is also about soil. It is also about forest. हर चीज में ये नियम अपनाना पड़ेंगे, है ना, local और limited consumption. So when it comes to living, yes, because buildings consume over 20% electricity that we use. Yes, that's So right. building में भी डिजाइन ऐसा करना पड़ेगा कि कम से कम काम चले, दिन में लाइट की जरूरत न पड़े, फैन की जरूरत न पड़े. उसमें भी करना पड़ेगा, कंजम्पशन लिमिट करना पड़ेगा. नॉट ओनली दैट, कितना बिल्डिंग तुम्हारे नाम पे कागज पे उसको भी लिमिट करना पड़ेगा. नहीं तो वो भी तो वायलेंस है ना. गांधी जी बोलते थे अपने साथ जरूरत से ज्यादा, इमीडिएट जरूरत से ज्यादा कुछ रखना भी वायलेंस है. क्योंकि तुम्हारे पास पैसे हैं, तुमने 5 फ्लैट खरीद के रख लिए, जमीन खरीद के रख ली. अब जिसको एक्चुअल में जरूरत है उसको बेचारे को महंगा मिलेगा नहीं. तुम तो तुम्हारे तो कोई जबरदस्ती जरूरत नहीं, तो तुम तो भाव कम भी नहीं करोगे. कोरोना आने के बाद भी नहीं करोगे. तो लिमिट ऑन एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मैंने बताया ना कि इकोनॉमिक ग्रोथ होने से कोई चेहरे की स्माइल थोड़ी बढ़ती है. तो हमको ऐसा लगता है या तो जीवन भर गलतफहमी में आदमी जीता रहता है कि ज्यादा पैसा कमा लूंगा तो खुश हो जाऊंगा. ऐसा तो कभी होता भी नहीं है. That also you need to wake up and realize someday. But you're right. Even in a building, everywhere, every aspect of our life, whether it is our kitchen, whether it is our building, whether it's our office, everywhere we need to be following these 2 principles. Thank you. All right. Now I would like to request Dr. Nikunjar Patel sir. Actually, as if I conclude the complete session of the sir, then sir say that we have to introduce the high thinking and simple living in our life, as well as the second and most IMP thing is આપણા કહેવત છે કે આગ લાગે ત્યારે કૂવો ખોદવા ન જવાય. जब आग लगती है तब कुआं खोदने से कोई फायदा नहीं है. तो this one is not today. Also we are late to save the environment. So we try best to save the environment. This is the ultimate goal, which sir has very nicely expressed in this particular lecture. So I am really thankful on behalf of Sri Swami Atmanand Saraswati Institute of Technology for accept our invitation, Dr. Chetan Solanki sir. And I am also thankful to our trustee members for spending their valuable time with us. I am also thankful to our principal sir for continuously motivate us to arrange such kind of events in our institute. I am thankful to my joint coordinator Mahesh Magukia and other faculty members who are directly or indirectly involved in this particular event and provide us such a wonderful environment. I am also thankful to all audience because without your passion and